Assalamu alaikum, dear students. In previous lecture, we studied about the malting process. The malting from barley. First of all, we took the barley seeds, and then steeping was done by adding a lot of water at a particular amount of temperature, while we were providing the aeration in it. And then after that, those steeped seeds were subjected for the germination at 45% moisture level, and continuous irrigation was provided. Then the sprouted germinated seeds were called as green malt. Green malt was then killed at a particular temperature, and from where the malt was produced, drying flavor development was done by raising the temperature and through Maillard reactions. After the malting process, a lot of the malted drinks can be prepared. But most of the countries, the after the malting process, the malt is subjected for brewing, beer production. I usually don't teach uh, beer production, alcoholic beer production, but as you people may work in breweries, there they produce a lot of non-alcoholic beverages, a lot non-alcoholic products. Therefore, it's very much necessary to teach you the brewing process basically. And in brewing process, the first major raw material is malt. Second is adjuncts. Third one is hops, water, and yeast. Let's study in detail about these raw materials and then the actual process. These raw material have a lot of details. That's why I'll try to go through each conceptual point. Let's move on. Malt, you know very well, malt is a source of both enzymes and fermentable carbohydrates, as we discussed in the last lecture. And in addition, it makes a major contribution to the flavor and color of the final beer. For yeast to produce carbon dioxide and ethanol from the seed, here we are not discussing what is the actual process is. We are just discussing about the ingredients, so don't get confused. For yeast to produce carbon dioxide and ethanol from the cereal, the starch must first be converted to simpler sugar. In seed, most of this malt is basically composed of enzymes and fermentable carbohydrates, but not that much. So we add adjuncts. What are the adjuncts are basically the grounded material, grounded barley, starch ऐड कर सकते हैं आप. मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको मज़ीद फर्मेंट किया जा सके. स्टार्च नॉर्मली हम करते हैं. तो क्या होता है कि ये जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एथनॉल प्रोडक्शन के लिए सीरियल से सबसे पहले तो स्टार्च को फर्मेंटेबल सिंपलर शुगर, ये जो सिंपलर शुगर हैं इनको आगे जाके लो मोलेकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स भी कहा जाएगा. सिंपलर शुगर्स को लो मॉलिक्यूलर वेट में हमारे पास अमाइलोज भी आता है, हमारे पास माल्टीडेक्सट्रोज भी आता है, माल्टोज भी आता है. यही डाइसेक्राइड्स मोस्टली by the malt. Amylases, which are collectively referred to as malt diastatic system. Amylases, which are collectively referred to as malt diastase enzyme होता है ना, diastase, amylase, one of same, मतलब माल्टो उसको सॉरी, हाँ जी, माल्टेज हो गया, डायस्टेज हो गया और अमाइलेज हो गया, वन एंड द सेम एंजाइम. ठीक है. Actually, the mixture of alpha and beta amylases converts starch to mainly maltose. And maltose जो है वो किससे बना है? वो ऑन द आगे जाके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक माल्टोज बनाते हैं. और अदर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स इंक्लूड माल्टोट्रायोज, oligosaccharides of higher degree of polymerization, and are limit dextrins. While glucose and maltose are readily utilized by the yeast, maltotriose is utilized very slowly. एक्चुअली ये जो माल्ट है ये क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज, माल्टोज और माल्टोट्रायोज में. हम अगर आर्टिफिशियल अमाइलेजेस
ऐड करते हैं, अच्छा सेकंड एक और आपको बात बताती हूँ, ये मार्ट जो है ये इससे हम अमाइलेज एंजाइम भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब अमाइलेज प्रोडक्शन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है. The larger oligosaccharides are not utilized and thus end up in the beer. Where they contribute to mouthfeel. जो oligosaccharides ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि माल्टोज ने ग्लूकोज में और ग्लूकोज ने आगे एथेनॉल में कन्वर्ट होना है. सो जो ओलिगोसेक्राइड्स जो है नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो माउथ फील में कंट्रीब्यूट करते हैं. मोस्ट ऑफ द बियर इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड विद द बार्ले माल्ट. द मोस्ट predominant exception appear to be the sorghum beer produced in Africa and the white beers such as those produced in Germany where wheat malt is the primary source of enzyme. All right. एडजंक्ट्स क्या है? एडजंक्ट्स राइस ग्रिट्स भी एडजंक्ट्स माल्ट में, और माल्ट है और फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इतने नहीं हैं कि आप उनसे एथेनॉल जो है वो एक बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस कर सकें. इथाइल अल्कोहल या जिसे बोलते हैं अल्कोहल, बियर वगैरह में वो अल्कोहल जो कि कॉज करती है, ये जो नशा वगैरह कॉज करती है, वो जो है वो इतनी माल्ट हमारे वहाँ एक्चुअली माल्ट प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास एक रिच सोर्स है एंजाइम्स का. वो एंजाइम्स नेचुरल एंजाइम्स जिसमें हम अगर मज़ीद ऐड करते हैं कोई कार्बोहाइड्रेट तो वो उसको भी हाइड्रोलाइज कर देती है. सो एडजंक्ट्स जो हैं नॉन माल्टेड सोर्स ऑफ फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो ज़्यादातर जो है ये टुवर्ड्स पेलर और मोर माइल्डली फ्लेवर बियर्स जो है नॉर्थ अमेरिका और दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मिली जाती हैं. तो इसमें हम राइस यूज़ कर सकते हैं, मेज़ के ग्रिट्स यूज़ कर सकते हैं, अनमाल्टेड बार्ले यानी मज़ीद बार्ले को ही ग्राइंड करके आप डाल दें, व्हीट का स्टार्च यूज़ कर सकते हैं, मेज़ और व्हीट स्टार्च के सिरप्स यूज़ कर सकते हैं, सॉर्गम ग्रिट. लाइक आपने कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करने हैं वो किसी भी किस्म के. ग्रेट्स फॉर ब्रूइंग मस्ट देयरफॉर बी मेड फ्रॉम द साउंड ग्रेन. अच्छा बात यह है कि अगर यहाँ पर भी एडजंक्ट्स की क्वालिटी बहुत मैटर करती है. अगर तो आप ये करते हैं कि कोई भी डिटीरियोरेटेड ग्रेन यूज़ कर लेते हैं लो क्वालिटी, तो एट द एंड जो है वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाएगी. इसलिए ज़्यादातर साउंड ग्रेन्स जो हैं उनको आप ग्राइंड करें और जो है वो ब्रूइंग के लिए यूज़ करें. ठीक है. द ग्रिट्स मस्ट नॉट बी रैंसिड एज सच फ्लेवर नोट्स वुड बी कैरिड ओवर द बियर एंड वर्सली अफेक्ट इट्स क्वालिटी एक्सेप्ट व्हेन द एडजंक्ट इज सिरप प्रोड्यूस फ्रॉम मेज. राइट, जस्ट एडजंक्ट्स में आपने ये देखना है कि गुड क्वालिटी एडजंक्ट यूज़ करना है, फ्री ऑफ मोल्ड, फ्री ऑफ एनी फॉरेन सीड, मतलब एक ही साउंड ग्रेन के लेकर आपने. ओके, एडजंक्ट्स की समझ आ गई आपको. होप्स क्या है? होप्स ड्राइड फ्लावर्स होते हैं दैट फ्लेवर बियर एंड आर यूटिलाइज्ड फॉर देयर एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट प्रिजर्वेटिव. होप्स जो है, होप प्लांट जो है, ये बेसिकली एक प्लांट होता है जिसके फ्लावर्स ऐड किए जाते हैं जो कि बियर का एक तो फ्लेवर अपग्रेड करते हैं, दूसरा प्रिजर्वेटिव इफेक्ट होता है. प्रिजर्वेटिव इफेक्ट, बियर ख़राब भी तो हो सकती है ना, लेकिन बियर जितनी ओल्डर बियर होगी उतनी ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, स्ट्रॉन्ग एथनल उसके अंदर प्रेजेंट होती है. तो क्या करते हैं, स्पॉइल कम होती है, तो इसलिए नेचुरल, देखिए हम पहले भी अमाइलेज यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल जो है माल्ट, नेचुरल अमाइलेजेस यूज़ कर रहे हैं माल्ट में, खुद से हम अमाइलेजेस डेवलप कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं फर्मेंटेशन में. अब यहाँ भी बहुत सारी अप्रोचेस जो हैं वो यूज़ की गई इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करने की. फाइनल बियर प्रोडक्शन में जो फाइनल उसका टेस्ट था वो हमेशा अच्छा नहीं होता था, बट ये एक्सीडेंटली समझ लें या एक्सीडेंटली होप्स के फ्लावर्स जब ऐड किए गए तो उसके अंदर जो है वो बहुत अच्छी प्रिजर्वेशन इफेक्ट बहुत अच्छा आया. देन साइंटिस्ट स्टडी दैट 3 होप कंपोनेंट्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ बियर. These are the essential oils that the bitter raisins and the polyphenols. The hope oil is responsible for both aroma and flavor. Its composition is complex, 70 to 80% consisting of terpene like hydrocarbons. Myrcene, the largest component, generally account for 40 to 70% of the total oil content. However, most of the flavor is thought to come from oxygenated compound and mixture of aldehyde, ketones, alcohols, and carboxylic acid. Next, the bitterness of the hops comes from the resinous material, 3-alpha acid, hemulone,
एडह्यूमुलोन एंड कोह्यूमुलोन आर peculiar टू द होप प्लांट। यही वो एक्चुअली कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रिजर्वेशन इफेक्ट है और बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट आता है। ये इनकी लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर, लेकिन फिर भी ये पॉलीफिनोल्स या फ्लेवोनोल्स जितने भी हैं वो इसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे दोज। ये इनका मोलेकुलर वेट जो होते हैं ये प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं जो इंसॉल्युबल कर देती है। इसीलिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रूइंग हम जो होप्स की प्रोटीन है उसको भी डाइजेस्टिबल बनाते हैं ताकि वो ये वाले कंपाउंड्स जो हैं उनको छोड़ दे और ये सॉल्युबलाइज हो जाएं बियर के अंदर। Next is water. Properties and quality of water used for utmost importance in brewing any order flavor. Water जो है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। उसकी पीएच जो है वो जितना भी जो भी स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं इन बेवरेज इंडस्ट्री वो तमाम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो यानी हैवी वाटर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, जितनी भी ये ट्रीटेड होना चाहिए और उसके अंदर इसकी क्वालिटी वाटर की क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। इन सिंपल हियर दे हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। यीस्ट, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यीस्ट जो है वो क्या करती है, जितनी भी उसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गई है लो मॉलिक्यूलर वेट शुगर्स की, यीस्ट जो है वो उन शुगर्स को कंज्यूम करते हुए एथनॉल प्रोड्यूस करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। Yeast strains for brewing are developed, maintained and utilized based on their ability to affect beer characteristics. अब कौन सी yeast, Saccharomyces की कौन सी यूज़ करनी है? Saccharomyces cerevisiae यूज़ करनी है, Saccharomyces पेस्टोरिनस यूज़ करनी है, सेक्रोमाइसिस कार्ल्सबर्जिनस यूज़ करनी है। कौन सी हमने यूज़ करनी है डिपेंड कि हमें किस किस्म की बियर चाहिए, क्योंकि ये सेक्रोमाइसिस की सारी स्पीशीज़ जो हैं दे प्रोड्यूस एथनॉल। First important yeast characteristics is the vigor with which the strain attacks the fermentable carbohydrate and produce ethanol, carbon dioxide and minor constituents that affect flavor. राइट सबसे पहली एबिलिटी ये है कि वो कितनी ताकत के साथ जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, एथनॉल प्रोडक्शन कितनी होती है। दूसरी यीस्ट की प्रॉपर्टी ये है कि इसके सेल्स की टेंडेंसी होती है कि वो एग्रीगेट कर जाते हैं और आपस में स्टिक करते हैं, तो फ्लोक्यूलेंस ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। इंडिविजुअल यीस्ट सेल्स आर स्मॉल इनफ टू स्टे सस्पेंडेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, particularly in high gravity solutions such as wort. The rate at which they form aggregates determines how fast they settle from solution. If the cells aggregate and settle to the bottom, that will be called as bottom yeast. But if they use in large ledger beers, ठीक है, ये पेस्टोरिनस जो है ये और जिसको हम पहले कार्ल्सबर्जिनेसिस भी कहते थे, ये बेसिकली जो है बॉटम यीस्ट है। ये दोनों बॉटम यीस्ट हैं, यानी ये क्लम्प करके नीचे बैठ जाती हैं और वहां जाके यूज करते हुए ये एथनॉल प्रोडक्शन करती हैं ग्लूकोज को। जो टॉप यीस्ट हैं वो क्या करती हैं, वो आपस में क्लम्प टुगेदर होके वो ऊपर ही तैरना शुरू कर देती हैं, गैस को ट्रैप करती हैं, बॉइंट होती हैं इतनी ज्यादा कि ये ऊपर ही रहती हैं। सो टॉप यीस्ट जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोड्यूस करती हैं यीस्ट, जैसे सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी हमारे यहाँ मार्केट में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ बी फ्लोर साशे। बी फ्लोर साशे हैं, अगर आप कभी किसी को अल्लाह ना करे मतलब ये ब्लॉटिंग का, ये लूज मोशंस का इशू रहा हो, तो वो साशे जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि जब भी आप वो साशे वो उसमें से वो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी के जो ग्रेन्स हैं वो आप पानी के अंदर डालते हैं तो वो ऊपर ही तैरते रहते हैं, वो डिजोल्व नहीं होते। Yeast that has a higher rapid flocculent tendency separates from the fermentable carbohydrates early and produces beer with a low attenuation, that is low degree of conversion of sugar to alcohol. Such yeast result in rather sweet beers that are full bodied. In contrast, powder yeast, that is yeast that don't flocculate well, यानी अगर वो strains की sorry इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेन्स होगी तो फ्लॉकुलेट करेगी ऊपर, वो उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू बॉटम। जो टॉप यीस्ट है वो स्वीट बियर्स बनाएगी, जो बॉटम यीस्ट है उसकी जो है वो हाई
attenuation होगी और watery mouth feel होगी. Water yeast is difficult to remove from beer, and if retained, the beer gives a yeasty taste. So at the end, what we have concluded that the yeast that flocculate on the top of the wort are better as compared to the powdered yeast that become the bottom yeast at the end. Here is a simple process जो कि हमारा ये आई थिंक ये हमारा प्रोसेस था, माल्टिंग तक का प्रोसेस था. इसके बाद ये है हमारा टोटल ब्रूइंग का प्रोसेस. हार्वेस्ट करते हैं, माल्टिंग करते हैं, स्टीपिंग, माल्टिंग के 3 प्रोसेस हैं, ठीक है. उसके बाद मिलिंग. मिलिंग जो होती है वो आपको आगे जाकर डिस्कस करते हैं. माशिंग, माशिंग में 2 तरह के प्रोसेस होते हैं. इन्फ्यूजन माशिंग होती है, डिकॉक्शन होती है, फिर बॉयलिंग करते हैं, होप्स डालते हैं, ट्रब रिमूवल होता है, ऑक्सीजनेशन, पिचिंग. पिचिंग में हम यीस्ट डालते हैं, यीस्ट फर्मेंटेशन होती है, लेजरिंग होती है, लेजरिंग के बाद पैकेजिंग होती है और कंडीशनिंग हो जाती है. ये यहाँ तक जो हमारी चीज़ थी, ये पिचिंग तक, हम इसको बोलते हैं वॉर्ट. वॉर्ट जब यीस्ट डाल देते हैं, फर्मेंटेशन होती है, फिर ये बियर में कन्वर्ट हो जाती है. तो हमारी वॉर्ट की प्रोडक्शन होती है ऑक्सीजनेशन और पिचिंग तक. स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ अ बिट टेक्निकल. इसको अच्छे से पढ़ के अपने नोट्स बना लीजिएगा सो दैट यू कैड अंडरस्टैंड. हर चीज़ इसके अंदर एग्जैक्टली दी हुई है. अगर आपको कुछ समझ नहीं आती, आप जो है वो पूछ सकते हैं, आप थ्रू ऑल द ways I have told to you. Milling and mashing. Before the actual brewing process, the malt particle is reduced. इनको जो है वो grind किया जाता है एक तरह से. When it is received at the brewery, the dried malt still consists of intact kernels, but with the rootlet removed. Either wet or dry milling can be used. In general, the goal is to reduce endosperm to a fine particle size and still maintain the husk and bran in relatively large pieces. When lauter tons are used for mash separation, this is a kind of lauter ton. एक बड़ा सा माशिंग होता है बेसिकली. आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे हम जो है वो उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उसमें इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अमाइलेजेस. ओके, द मोस्ट कॉमन रिडक्शन सिस्टम इज़ अ शॉर्ट फ्लो रोलर मिल. ये ऐसी ही मिलेंगे जैसी हम नॉर्मली अपनी वीट और ब्रांड वगैरह की करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वीट और मेज़ की करते हैं, लेकिन विद लार्जर पार्टिकल ऑफ हस्क. हैमर मिल या पिन मिल ज़्यादातर यूज़ होती है इसमें. नेक्स्ट, माशिंग. 2 तरह की माशिंग होती है. द एडजंक्ट बेस्ड माश इज़ प्रिपेयर्ड इन द. क्या करते हैं कि माल्ट और एडजंक्ट डालते हैं हम एक बड़े सारे एडजंक्ट कुकर में. इस तरह का भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी, अगर तो इन्फ्यूजन आपकी इन्फ्यूजन माशिंग है तो आप उसमें कौन सा यूज़ करेंगे, और अगर आपकी डीकॉक्शन माशिंग है तो आप उसमें क्या यूज़ करेंगे. ओके, द एडजंक्ट बेस्ड माश इज प्रिपेयर्ड इन द एडजंक्ट कुकर. यहाँ क्या करते हैं हम, माल्ट के साथ वही स्टार्च जो पीछे एडजंक्ट की बात हुई थी वो डाल देते हैं. ये वो जो हमारा अमाइलेज है वो एडजंक्ट को जेलेटनाइज करेगा, मिक्सचर थिन हो जाएगा. क्योंकि जब भी थिक किस्म का एडजंक्ट डालते हैं उसके अंदर जब माल्ट डालते हैं सिंपलर शुगर प्रोड्यूस होती हैं, तो थिन होता जाता है हमारा मिक्सचर. द एडजंक्ट प्रोटीन इनसॉल्युबल होती है, मिक्सचर स्टेरिलाइज होता है. इन प्रैक्टिस द एडजंक्ट इज प्लेस्ड इन अ कुकर विद वाटर अलोंग विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द माल्ट. एक्चुअल प्रोसेस ये है. द पीएच ऑफ द मिक्सचर एडजस्ट की जाती है 5.5 तक, और ऑप्टिमम पीएच जो है एंजाइम एक्टिविटी की यही है. तकरीबन 35 से 30 मिनट तक जो है वो एसिड रेस्ट देते हैं इसको, और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं फिर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं मज़ीद 20 से 30 मिनट तक. 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके स्टार्च जो है एडजंक्ट के अंदर वो जेलेटनाइज हो जाता है और बहुत ज़्यादा माइलोलिटिक एंजाइम एक्टिविटी के लिए ससेप्टेबल हो जाता है. जेलेटनाइज्ड जो स्टार्च होगा उसको उसके ऊपर जो है वो एंजाइम एक्टिविटी फास्ट होगी. यहाँ पर हम इसको मज़ीद टाइम देंगे. The enzyme in the small amount of the malt then inject to thin the gelatinized starch paste, which as a result allows the mixture to be pumped at a high ratio of solid to water. After the thinning step, temperature is raised to boiling for about. जब हमें हमें एक पर्टिकुलर जो है
वो पता चल जाएगा कि इसकी थिननेस जो है वो हमें मिल गई है और इसमें डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिविटी हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर फुल रेज़ कर देते हैं, बॉयल करते हैं पूरे आधे घंटे के लिए। ये ना सिर्फ डीनेचर करता है एडजंक्ट की प्रोटीन को, बल्कि ये सॉल्युबिलिटी को भी रिड्यूस करता है प्रोटीन, एंड आल्सो स्टेरिलाइजेस द सिस्टम। कूलिंग के बाद क्या करते हैं, कंटेंट ऑफ द एडजंक्ट कुकर उनको हम एक मार्च टन के अंदर जो है वो डाल देते हैं, जहाँ पर मार्च रिमाइंडर ऑफ द मार्च स्लरिड इन वाटर. The objective of the mashing step is to convert the starch into low molecular weight fermentable carbohydrates. The pH of the mash is maintained 5.5. Again इसके अंदर जो है वो हम डालते हैं माल्ट की थोड़ी सी क्वांटिटी, जो कि इसको अगेन कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है, जो रिमेनिंग स्टार्च रह गया था उसकी. जनरली माशिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम टेम्परेचर राइजेस एंड होल्ड्स. प्रोग्राम्ड यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा आधे घंटे के लिए, उसके बाद 70 पे ले गए, फिर उसके बाद जो बॉयल कर लिया, फिर उसमें थोड़ा माल्ट ऐड किया, फिर उसको कूल किया, फिर माल्ट ऐड किया, फिर 35. इस तरह से ये थोड़ा सा रिपीटेड प्रोसेस है. इस तरह से माल्ट जो है वो हाइड्रेट हो जाता है और मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन हो जाती है लो मॉलिक्यूलर वेट शुगर्स की. एक्चुअली स्टार्च से जब हम, तो हमारे पास एक एमलगमेट आता है, सिर्फ उसमें सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा दूसरे ओलिगोसेक्राइड जो कि माउथ फील देते हैं, बहुत से ओलिगोसेक्राइड जो एज अ प्रीबायोटिक यूज़ होते हैं, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स जो उसका टेक्सचर बनाते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको बहुत, फिर तमाम प्रोटीन जो है वो भी उसके अंदर है. तो ये एक ना सिर्फ हेल्दियर ड्रिंक्स बनती हैं हमारे पास, हेल्दियर प्रोडक्ट्स बनती हैं, बल्कि फिर ये जितनी भी जब हमने इसकी यीस्टिंग करनी है, ड्यूरिंग यीस्टिंग जो है वो इसके अंदर जो है एथनल के साथ साथ जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी है वो बहुत ओलिगोसेक्राइड को यूटिलाइज करते हुए बहुत से प्रीबायोटिक, बहुत सारे अच्छे विटामिन डी वगैरह भी बनाती हैं. तो ये हमारी जो भी प्रोडक्ट अल्टीमेटली बनती है ब्रूड प्रोडक्ट होती है, दैट इज मोर हेल्दियर एज कंपेयर टू द फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारी रा प्रोडक्ट थी उससे. This stage is to refer to temperature is then raised to about 45 to 50 and held for 30 minutes. यहाँ पर हमारी प्रोटियोलिटिक रेस्ट होती है, यानी प्रोटीन्स जो हैं वो भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती हैं. In practice, about 1/3 of the malt protein remains insoluble, but the other 1/3 is made permanently soluble and plays an important role in the subsequent stages of brewing. The temperature is then raised, typically to 62 degrees centigrade. This temperature increases cause the barley malt starch gelatinize. And in addition, a temperature rest at again 20 से 30 मिनट तक जो बीटा माइलेजेस को ऑप्टिमली एक्टिव कर देती है. So mashing is completed after another temperature rise of 20-minute hold at 72 degrees centigrade. Optimum temperature of alpha amylase to be active, right? With a well-modified malt, the mashing in process can already be started at 63 degrees centigrade. This shortens the total mashing process without impairing final product quality. दूसरा तरीका है डीकॉक्शन. यहाँ तो हम जो है वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, फिर उसकी, लेकिन डीकॉक्शन मेथड में ये होता है कि ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम एक क्वांटिटी लेते हैं माश, जो भी हमारे पास माश है बेसिकली एडजंक्ट एंड माल्ट का मिक्सचर. माश का एक पोर्शन लेते हैं, उसको बॉयल करते हैं, फिर मेन माश के अंदर डाल देते हैं, टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज होता है और वो उसके अंदर जितनी भी अमाइलोलिटिक और प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है. In one step decoction mashing, the temperature raise is designed to result in optimal conversion of starch to fermentable carbohydrate. When तीन तरह के स्टेप्स जब डालते हैं तो क्या होता है, the acid protein and starch conversion rest. The acid rest allows the particles of malt to hydrate. ओके इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैशिंग सिस्टम यूज आफ्टर मैशिंग इज कंप्लीट, स्वीट वॉट को सेपरेट कर लेते हैं जो मेन ग्रेन्स हैं. अब ये पूरा एक मिक्सचर था जिसके अंदर मार्ट था, ग्रेन. ये कैसे करते हैं, लॉटर टन के अंदर जो है हम डालते हैं, बहुत बड़ा टन होते हैं ये हमारे पास. इनकी स्क्रीन्ड बॉटम के ऊपर एक बारीक सी स्क्रीन लगी होती है. मैश को जब हम पंप करते हैं इस कंटेनर के अंदर तो सेटल होने के लिए उसको 30 मिनट्स देते हैं. जब 30 मिनट देते हैं तो जितना भी हस्क और ब्रैन पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्रीन के ऊपर एक फिल्टर मैट बना देते हैं.
इसीलिए जो है ये बार्ले की जब पहले बताया गया था ना कि वाई वी डू यूज द बार्ले, तो यही बात कही गई थी कि बार्ले को हम यूटिलाइज इसलिए करते हैं कि उसका हस्क जो है वो फिल्टर एड के तौर पर यूज होता है इन मैशिंग प्रोसेस। ठीक है, तो क्या होता है कि ये सेटलिंग के बाद स्वीट वोट जो होता है उसको पीछे से पंप किया जाता है टैंक के अंदर और रिसाइकल थ्रू द फिल्टर मैट until it is clear and then pumped off. The spent grain in the mat is then mixed with hot water and allowed to settle before the residual soluble material is pumped off and added the sweet wort. This process is called sparging. मतलब आपने जो उसके बाद वो उसके ऊपर एक मैट, हस्क मैट के ऊपर फिल्टर होके जो नीचे हमारे पास क्लियर आ गई है, स्वीट वोट आ गया है, हमने उस स्वीट वोट जो है जो ऊपर रेजिड्यू था उस रेजिड्यू को मजीद डाइल्यूट करके फिर उसके ताकि मैक्सिमम स्वीट वोट जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। द रिमेनिंग स्पेंट ग्रेन इज रिकवर्ड एंड यूज मेनली एज एन एनिमल। Sorry, students, for okay. The remaining spent grain is recovered and used mainly as animal. Because of the starch has been removed, the brewer's spent grains are enriched in protein and crude fiber content. The clear sweet wort can also be obtained using a thin bed filter, which is essentially a plate and a frame filter. In this case, the malt must be finely milled. Filtration of the first wort takes significantly less time than filtration with lauter tons. All right. Depending on the way, the various chambers are filled with sparging water. Sparging takes the same or significantly less time than what lauter tons are used. Okay. Wort boiling and cooling. उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास स्वीट वॉट है उसको हम 1.5 से 2 आवर्स तक जो है वो बॉयल करते हैं, उसमें होप्स डाल देते हैं जिससे उसके पीएच मेंटेन करते हैं। ये होप्स जो हैं इनके कंपाउंड इसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो है फ्लेवर एरोमा सब डेवलप हो जाता है। ये इसका कलर भी डार्क हो जाता है होप्स कलर जो है वो कंज्यूम करने के बाद। इस यूनिट ऑपरेशन के बाद क्या करते हैं, इस यूनिट ऑपरेशन के बाद हम अगेन इसको कूल कर लेते हैं। कूल करके जो है वो इसको वो कर लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करके हम इसको पिचिंग टैंक्स के अंदर डाल देंगे। ये इसको यहाँ पर होप वोट बोलते हैं। स्वीट वोट को जब होप्स लीव्स के साथ जो है वो 1.5 से 2 आवर्स तक बॉईल कर लिया जाएगा तो वो उसको होप्स वोट बोलेंगे। इसका कलर डार्कर होता है, कलर इसका टेस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा बिटर होता है। इसको कूल करेंगे और वोट को पिचिंग टैंक्स के अंदर जो है वो कर लेंगे। पिचिंग में क्या होता है, हम डालने के बाद यीस्ट को ऐड कर देंगे होप्ड वोट के अंदर। होप्ड वोट के अंदर जब यीस्ट को ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 200 ग्राम पर हेक्टोलेक्टेयर या 7.5 ग्राम पर यूएस गैलन, ये रेट है जिस रेट के ऊपर डाला जाता है। आइडियली फर्मेंटेशन starts with a cell density of 10 to 20 million yeast cell per milliliter. The oxygen added during cooling helps shorten the lag phase of the yeast growth. Following pitching, the whole wort is pumped to fermentation tanks. फर्मेंटेशन टैंक्स के अंदर डाल दिया जाता है जो सेमी क्लोज टैंक्स होते हैं। फर्मेंटेशन यू नो वेरी वेल कि फर्मेंटेशन ऑलवेज एनारोबिक होती है। ठीक है, इसको हम जो है डाल के जो है इसके अंदर जो भी इसकी क्वांटिटी रखेंगे तो ये हमारे पास ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है वो मिलके प्लस ये बना देंगी एथनॉल प्रोडक्शन कर देंगी और प्लस जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। Because of the heat produced, the fermentation tank size will be cooling twice so that a constant temperature can be maintained. The yeast not only consumes fermentable carbohydrates but also amino acids. Amino acids that result from hydrolysis of the malt protein. मैंने पहले बोला था कि ये जब यीस्ट हम डालेंगे तो यीस्ट की फर्मेंटेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे जो बेनिफिशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो ये फ्लेवरिंग कंपाउंड ये जितनी भी कंज्यूम का प्रोसेस इन एडिशन टू एथनॉल। एथनॉल जो है सिर्फ हमने वही कंज्यूम नहीं करनी, बाकी तो जितने भी अमाइनो एसिड हैं जितनी भी चीज़ें हैं we being Muslims are able to consume those things. Temperature जो है बॉटम फर्मेंटेशन जब करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं
Although temperature up to 15 डिग्री सेंटीग्रेड can also be used. In top fermentation जो होता है वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं. नॉर्मली 72 आवर्स के लिए हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं. उससे फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाती है. जब डिजायर्ड कंटेंट इसका टेस्ट कर लिया जाता है कि डिजायर्ड शुगर कंटेंट अचीव हो गए हैं और एथनॉल जो है इसकी प्रोडक्शन हो गई है, तो हम क्या करते हैं कि जो है वो फर्मेंटेशन को स्टॉप कर देते हैं और इसमें से इसको फिल्टर कर लेते हैं. यीस्ट जो है इसको फिल्टर कर लेते हैं और हमारी ड्रिंक कंप्लीट हो जाती है. अब भी इसको काइंडली जो है the changes that take place in chemical summarize as follows. Glucose, maltose and maltose thiiols are converted to maltose and carbonates. The pH drops from 5.5 to about 4 to 4.3. The nitrogen content falls by about one third, chiefly because of its utilization by yeast. The oxygen content decreases to about 0.3%. Part of the whole proteins are also lost as they absorb onto the yeast cell wall. The beer becomes lighter in color partly because of the pH change, and its final specific gravity is reduced because of the consumption of fermentable carbohydrate and concomitant production of alcohol. These are the actual changes that take place during the process of fermentation. Light and non-alcoholic beer. A number of approaches can be used to produce light or low-calorie beer. The simplest is to dilute beer by adding water. Most of the techniques used today, however, rely on removing the limit dextrin left in the malt after the malt alpha and beta amylases have degraded the starch or on the use of adjuncts that have much lower concentration of limit dextrin. The limit dextrins are not fermented by yeast and thus remains in the beer contribute calorie mouthfeel. लाइक वो तमाम प्रोडक्ट जो कि ड्यूरिंग जिसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट डेक्स्ट्रिन ना बने, हम अगर वो यूज करें एज एन एडजंक्ट, तो हमारी बियर का कलर लाइट हो सकता है. They consist glucose maltase linked alpha 1, 6 and 4 to 8 other glucose residues linked alpha 1, 4 near 1, 6 bond. I think you might have studied this, the alpha 1, 4 linkage and alpha 1. When you have alpha 1, 4 linkage between two glucose molecules, they used to make normally amylose compound. And when there is alpha 1, 4 and alpha 1, 6 bond, then they used to make amylopectin. Conversion of these dextrin and myelopectin and maltose to amylose, like ये दो तरह की प्रोडक्ट बनती है. अल्फा 1, 4 माइलोसिस और जो 1, 6 है वो अमाइलोपेक्टिन यानी इन आता है जिसके एंड पे. तो दिस इज accomplished by using glucoamylase, the meshing step as indicated above. An alternative approach to use adjunct that contain little of 1,6 bonds such as a maize syrup with the high dextrose equivalent. यानी यहाँ पर भी अगर हम अपने एडजंक्ट को चेंज करते हैं तो हमारी टाइप ऑफ बियर चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉन एल्कोहलिक बियर्स जो प्रोड्यूस की जाती हैं, एल्कोहल इनमें से रिमूव की जाती है बियर में से ब्रूइंग के बाद. मोस्ट पॉपुलर मेथड टू रिमूव द अल्कोहल इज रिवर्स ऑस्मोसिस. और हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो लिमिट है अल्कोहल कंजम्पशन की, वो मैं तो कहती हूँ लेस देन 1% होनी चाहिए. वैसे मेरे ख्याल में लेस देन 3% है. और जो है बल्कि अल्कोहल बिल्कुल ही मना है. अच्छा बच्चों, एक चीज और कि मार्केट में ड्यू टू ये जब भी किसी को एक्नी प्रॉब्लम होता है या स्किन बॉल्स का इशू होता है, गर्मी हो जाती है लोगों में, तो इसको यही कहा जाता है कि ये एक आबे जो या ये शैंडी मार्केट में जो आती है, जो माल्टेड ड्रिंक्स, इसके अलावा माल्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं, माल्टेड ये पाउडर है, माल्टेड ब्रूड जो हैं प्रोडक्ट्स, ड्यू टू देयर अमाउंट ऑफ हाई अमाइलोलिटिक एक्टिविटी. इसके अलावा अमाइलोज जो हैं ये और यीस्ट जो है ये इसके प्रोटियोलिटिक अमाइलोलिटिक है. ये बहुत सारे वीनिंग फूड में, बच्चों के खानों में, इधर उधर बहुत ज्यादा मार्केट में इसके प्रोडक्ट्स हैं. जस्ट आप माल्टेड एंड ब्रूड प्रोडक्ट लिखें अपनी गूगल बार में जाके एंड यू गेट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन द. इवन ये माल्टेड चोकोज वो भी आ रहे हैं. तो बच्चों के फूड के अंदर जो है ये प्रोसेस्ड, क्योंकि जब इसको नेचुरल प्रोसेस किया जाता है ना, जैसे दूध से हम दही बनाते हैं उसको स्टार्टर लगा के, तो दही की न्यूट्रिशनल क्वालिटी एज कंपेयर टू मिल्क ज्यादा होती है. इसी तरह से न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ malted and brewed products is much higher as compared to cereals.
दैट्स वाई ये प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, और मार्केट प्रोडक्ट्स और ब्रूड प्रोडक्ट्स should be used in our daily routine. Thank you very much. This was all about today's lecture.